Hello everyone. As the topic is written down here, we are going to start magnetically coupled circuit from this lecture. So a magnetically coupled circuit is when two loops with or without contacts between them affect each other through magnetic field generated by one of them, then they are said to be magnetically coupled. Means it doesn't matter that the two loops or coils are in contact or not. व्हाट मैटर्स, अगर देखो एक कॉयल या फिर एक लूप में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई और ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉयल या फिर दूसरे लूप को अफेक्ट कर रही है, देन वी से दैट दीज टू लूप्स और दीज टू कॉयल्स आर मैग्नेटिकली कपल्ड, इजंट इट? अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करोगे, सो एग्जाम्पल सिंपली एक ट्रांसफार्मर होगा। अगर आप ट्रांसफार्मर में देखोगे तो क्या होता है, इसमें जो कॉइल्स हमारे पास होती हैं वो फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होती है। ये कैसे डिज़ाइन होता है? ट्रांसफार्मर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक कपलिंग। इसमें क्या होता है, इट यूजेस द मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल्स टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर circuit. Okay, now let us learn some basics about inductor. So what is inductor? You will say that if the voltage across an element is directly proportional to the derivative of current with respect to time, then that element is called as inductor. और voltage across inductor हम लोग कैसे ये दिखाते हैं? V is equals to L di by dt simply, isn't it? And also what we know about inductor, that it is designed to store the energy in the form of magnetic field, isn't it? So if I will give you two conductors like this is a normal wire and this is a coil, and I'm saying that current I is flowing in both the coil and this single wire, and I'm now asking you, tell me the inductance of this and this. What you will say? Generally you will say that this has some inductance value, isn't it? मानो कोई इंडक्टेंस वैल्यू x हेनरी है, ठीक है। अगर यही इसके बारे में मैंने पूछा तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? दैट L इज इक्वल्स टू 0, बट नो, दिस इज नॉट करेक्ट। इसकी इंडक्टेंस वैल्यू 0 नहीं है। देखो, एनी कंडक्टर कैरिंग करंट हैविंग इंडक्टिव प्रॉपर्टीज, मतलब कोई भी कंडक्टर अगर करंट कैरी कर रहा है तो उसके अंदर इंडक्टिव प्रॉपर्टीज होगी और उसे हम लोग एज एन इंडक्टर कंसीडर कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम देखो, दिस कंडक्टर में, इस वाले कंडक्टर में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो वेरी वीक है, इसलिए हम लोग इसे नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। बट वहीं इस वाले कंडक्टर में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। सो हमने क्या किया, एक सिंपल वायर में व्हेन वी प्रोवाइड नंबर ऑफ टर्न्स, देन दैट कंडक्टर विल हैव मोर इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब हमें अगर इंडक्टिव इफेक्ट किसी भी कंडक्टर की इंक्रीज करनी है, सो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड करेंगे और इंक्रीज कर देंगे नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, नाउ लेट अस फर्स्ट कंसीडर अ सिंगल इंडक्टर. So this is an inductor, or you can say a coil having n number of turns. So what I have said, that it has n number of turns, and also current I is flowing through this inductor or coil. So when current I flows through the coil, what happened next? A magnetic flux phi is produced around it, isn't it? So phi, that is magnetic flux, will produce around it. And since this current is time varying, okay, always remember this current which we are providing is time varying, because if this is DC, then this will become short circuit, means inductor will behave as a short circuit. So this current is time varying, और ये current time varying होने की वजह से जो हमें magnetic flux मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, time varying मिलेगी. And after this what happened, according to Faraday's law of inductance, an EMF will induced in the coil, an EMF, or you can say voltage, will induced in the coil, and this is proportional to time rate of change of
flux, and since it has n number of turns, hence you will write it as E or V is equals to n d phi by dt, isn't it? बट एक बात आप फिर से ध्यान दो, देखो ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से प्रोडक्शन हो रहा है फ्लक्स का? दिस करंट, इस टाइम वेरिंग करंट की वजह से ही ना फ्लक्स का प्रोडक्शन हो रहा है. सो यू कैन से दैट एनी चेंज इन फ्लक्स, अगर कोई भी चेंज होगा फ्लक्स में, इट इज कॉज्ड बाय a change in current, isn't it? So from here or from this statement you can say that phi is proportional to I. So you can write this equation as V is equals to n d phi by di into di by dt, and this term n d phi by di we termed as L into di by dt. From here we are getting an inductance or inductor value which is n d phi by di, and we call this inductance as self inductance. So what we will call it as self inductance. Why we call it as self inductance? Because see, it relates to the voltage induced in the coil itself by a time varying current. मतलब जब हमने एक time varying current provide किया तो इसमें magnetic flux induced हुई जो कि टाइम वेरिंग थी, और उस वजह से हमारे यहाँ पे क्या हुई, इसी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस्ड हुई, इजंट इट? सो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं. नाउ इफ वी विल कंसीडर टू कॉइल्स, मीन्स यहाँ पे तो हमने एक सिंगल कॉइल कंसीडर किया और सिंगल इंडक्टर कंसीडर किया. नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी कंसीडर टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस एज L1 and L2 and number of turns as N1 and N2. So see, these are two coils which I am talking about. इसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो L1 है और इसकी L2 है. नंबर ऑफ टर्न्स this have N1 and this have N2. So if we provide supply to the first coil, what will happen? Current I will flow in the first coil, and this current I will produce flux in coil 1 which have two components. And what are those two components? That are phi 11, that is this flux will only links with coil 1, and phi 12, this flux will links with both the coils, means coil 1 and coil 2. अब जब ये फ्लक्स मीन्स ये टोटल फ्लक्स देखो क्या होगी, phi इक्वल्स टू phi 1 इक्वल्स टू phi 11 प्लस phi 12. इसमें से कुछ पार्ट ऑफ फ्लक्स वो क्या होगी, सिर्फ कॉइल 1 से लिंक करेगी, एंड कुछ पार्ट क्या होगी, दोनों कॉइल से लिंक करेगी. एंड व्हेन this flux will links with this coil, then this flux will induce voltage in the second coil, isn't it? तो इस कॉइल में भी एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगी. तो इस कॉइल में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? सो लेट अस सी दिस. तो देखो हमारी सेकेंड कॉइल में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी उसे मैं E2 या फिर V2 से आप किसी चीज़ से भी लिख सकते हो. दिस विल बी N2 बिकॉज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंड कॉइल इज N2, एंड दिस EMF is produced by which flux? Phi 12, isn't it? So this will be E2 is equals to N2 d phi 12 by dt. अब इसे हम लोग फिर से N2 d phi 12 by di1, सिंस हमने सिर्फ कॉइल 1 में करंट प्रोवाइड किया है और ये जो phi 12 है वो किसकी वजह से आई है, I1 करंट की वजह से. सो di1 by dt. अब ये जो इंडक्टेंस जो हमारी निकल के आएगी, इसे हम सेम जैसे वहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पे इसे हम इंट्रोड्यूस करके क्या लिखेंगे, दिस इज M12 di1 by dt.
and this M12 is nothing but mutual inductance. ओके, सो यहाँ से जो हमारी M12 की वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, N2d∅12/di1। तो ये तो हुआ हमारे फर्स्ट कॉइल में जब हमने सप्लाई दिया, तो सेकेंड कॉइल में जो वोल्टेज इंड्यूस हुई उसकी वजह से उसकी वैल्यू। अब अगर हम सेकेंड कॉइल में सप्लाई देंगे एंड उसका जो इफेक्ट है वो फर्स्ट कॉइल में देखेंगे, तो वहाँ से जो सिमिलरली E1 विल कम आउट एज M21di2/dt। देखो M12 मतलब फर्स्ट कॉइल में हमने करंट दी है और सेकेंड कॉइल में इंड्यूस्ड हुआ है। M21 मीन सेकेंड का इफेक्ट हुआ है फर्स्ट वाले में। ओके, सो यहाँ से भी M21 क्या निकल के आई हमारी, N1d∅21/di2। अब देखो एक काम करो आप, phi12 को we can write this as phi12 is equals to K1 phi1 because phi12 is a part of phi1 and phi21 is the part of phi2, so let us say it as K1 phi1 and K2 phi2. Okay, now if you will multiply M12 into M21, what will happen? See, M12 into M21, then what is this, N2 d∅12/dt, sorry di1 into N1 d∅21/di2। अब यहाँ से देखो phi12 क्या है, K1 phi1, सो यहाँ पे पुट करो तो K1 बाहर आ जाएगा, मतलब 1 सेकेंड, so this will be N2, let us say this is K1, K2 will comes out here and this is N2 d∅12 की जगह हमने ये पुट किया तो d∅1/di1 and this is N1 d∅2/di2। अब इसे आप एक काम करो, we will write it like this, K1 K2 N1 d∅1/di1 and this as N2 d∅2/di2। तो ये दोनों क्या हुई हमारी सेल्फ इंडक्टेंस हुई phi1 और phi2 की, isn't it? तो यहाँ से आप लिख सकते हो that M21 into M12 is equals to K1 K2 into L1 into L2। अब देखो जनरली क्या होता है, जो हम लोग क्वेश्चंस डील करेंगे अभी उसमें M12 is equals to M21 होता है, is equals to let us say M and K1 is equals to K2 is equals to K। सो यहाँ से जब आपकी M की वैल्यू निकलेगी वो होगी M square equals to K square L1 L2, so M is K root over L1 into L2 and this K is कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इंडक्टर, मीन्स टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, और ये L1 है सेल्फ इंडक्टेंस फर्स्ट कॉइल का और ये L2 है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल। बट एक बार आप नोट कर लेना, दैट इज म्यूचुअल कपलिंग, राइट डाउन, म्यूचुअल कपलिंग only exists when the inductors or coils are in close proximity। मीन्स देखो म्यूचुअल कपलिंग तभी एग्जिस्ट करेगी जब इंडक्टर्स और कॉइल्स जो होंगे वो क्लोजली प्लेस्ड होंगे, ठीक है, ये नहीं कि आपने एक यहाँ प्लेस किया और यहाँ प्लेस कर दिया, दिस मस्ट बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, देन म्यूचुअल कपलिंग विल exist and this K is what I told, that coefficient of coupling, and this K
we can write it as useful flux by total flux. बिकॉज देखो वहाँ से हमने जब 512 लिखा था या 512 लिखा था तो क्या लिखा था K1 into 5-1, isn't it? And this K1 from here 512 by 5-1, and this 5-1 I told you that this is useful flux and this is total flux by coil 1, isn't it? So K is useful flux by total flux. And also you should remember that this K will tell you about that हमारी जो कपलिंग हुई है वो कैसी परफेक्टली कपल्ड है या फिर लूजली कपल्ड है या फिर टाइटली कपल्ड है. हाउ देखो इफ द एंटायर फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय coil 1 or by one coil links another coil, मीन्स सारी की सारी हमारी जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगी एक कॉइल में वो दूसरे कॉइल में लिंक कर जाएगी. तो उस टाइम पे के क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग विल बी इक्वल्स टू 1 बिकॉज यूजफुल फ्लक्स और टोटल फ्लक्स इक्वल्स हो जाएंगी तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी. देन इन दैट केस वी से दैट 100% कपलिंग और perfectly coupled means these two conductors are or coils are perfectly coupled. ठीक है. अब देखो दूसरा आता है when k is less than 0.5. जब k less than 0.5 होगा then we called it as loosely coupled. ठीक है. And third is k is greater than 0.5, that is tightly coupled. सो आपको स्क्रीन पे एक फिगर दिख रही होगी, उसमें एक हमने दिखाया है लूजली कपल्ड और एक टाइटली कपल्ड का एग्जांपल दिखाया है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डॉट पोलैरिटी देखेंगे. थैंक यू.